Hello, we have once again in solid state topic, and this is our last topic of this chapter, that is magnetic properties of solid substance. One thing we need to understand here, what exactly this magnetic properties wants to say, how any solid substance behaves with other magnet. What is its response? Suppose you are going to bring magnet is already there, which creates magnetic lines of forces. And near that magnetic lines of forces, if any substance you are going to bring and that particular substance, how does it behave? This we are going to understand here. On that basis, we are going to declare different characteristics for those substances. Like here in this case, one thing we need to understand which type of substance can show magnetic character and what are those varieties we are going to see through PPT. So we'll just start here, PPT in this case. Like first thing which you're going to check just now, solids, like we are saying, that's going to be divided into 5 categories, and you know it very well beforehand. Also, you are aware of paramagnetic character, like it's quite familiar. Then diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. All these substances in different exams it comes because this nature and this temperament of substance going to help anybody to do experiment in terms of electrical properties or optical properties. Many discoveries take place. Number of you'll find in medical science also these things are used on the basis of these characteristics. Now we are going to understand here why any substance develops magnetic character. It means it shows behavior towards other substances. This is due to electron. Electrons are basically responsible. Why electrons are responsible here? Because electrons, if you remember, if electrons are moving, they keep on creating magnetic lines of forces. This part we have to understand, like thumb rule which you apply. Now next is this electron behaves as magnet because it's producing magnetic lines of forces around it, like I showed you. Now it's that magnetic moment which is created, it's going to be taken in unit as Bohr magneton. And remember that magnetic strength created around electrons, that is due to behavior of electrons. What electron does? Electron, when it is near the nucleus in an atom, what it does, it keeps showing orbital motion. Nucleus is here, it keeps moving orbital motion. Beside orbital motion, it shows spin motion also. So when this movement, spin movement, and this orbital motion, that's going to create simultaneously magnetic lines of forces in different directions. And those magnetic forces, we are going to see how this makes any substance magnetic in nature. Like here, paramagnetism, we are going to see here, substance containing unpaired electrons, either one electron or more than one electron, maximum 2 you will say. They are ready to get attracted towards external magnetic field. वो दूसरे मैग्नेट की तरफ, आप वैसा देखे होंगे नेल्स वगैरह जब रहता है जो मैग्नेट की तरफ चिपक जाता है, तो वो सारी चीजें आपके सब्सटेंस जो हुए, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, ऑक्सीजन शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, देयर वी हैड सेड, हम लोगों ने बोला था क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट हुआ, ड्यू टू दिस इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन सिचुएशन क्या है, वंस दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज आउट, this will become neutral. It means after that, it's not like that it's going to get attracted towards other substances also. So we have number of examples which you need to remember. Diamagnetism. Diamagnetism is what? It's not like it is neutral. As number of atoms contains paired electrons, and each electron is creating magnetic moment due to direction. That's a vector quantity. Due to magnetic due to paired electrons, you'll say you know it very well, electrons spin in opposite direction. उनके magnetic moment एक दूसरे को cancel out कर देंगे. So they are not neutral. They go towards, when you bring diamagnetic substance near the magnet, they are weakly repelled. Means झटका थोड़ा सा महसूस होगा. Weakly repelled you can say. And those substances are H2O, NaCl, benzene you can say here. So they are diamagnetic. Why they are diamagnetic? Because they are having paired electrons. Third is ferromagnetism. Ferromagnetism we have to understand properly. This is here, they are containing more number of unpaired electrons. इनका मजेदार क्या होता है,
बाहर से आप मैग्नेट लाते हो, it gets attracted towards magnet strongly. Means you can experience, you can feel. Suppose you are holding that ferromagnetic substance, magnet रखा, खटाक से चिपकेगा. उसके अलावा कुछ देर के बाद उस मैग्नेटिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आकर के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के खुद मैग्नेट हो जाएगा. तो आपके ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. मेन चीज यहाँ पर और समझाना है हमको कि हुआ कैसे. ये जो हुआ ऐसा कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, किसी भी एक मोल मिनिमम आप एटम एक जगह फील करते हो, महसूस करते हो, तो उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके द्वारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, सबके अलग अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस होंगे. सिमिलैरिटी इन डायरेक्शंस के बेसिस पर वो लोग ग्रुप बना देते हैं. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने व्यूज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं. Means like in India, you will find number of political parties are there, and they are having their own views. You will say they are having. So those particular area, on the basis of similarity in direction of magnetic lines of forces, they are named as domain. यानी कि आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ढेर सारे डोमेन्स एक्सपेक्ट करोगे, जिसमें अलग अलग डायरेक्शंस वाले हैं और अलग अलग डायरेक्शंस वाले. अभी आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ आई जस्ट शो यू इन दिस स्लाइड, अलग अलग डायरेक्शंस वाले यहाँ पर आपको दिखेंगे. एंड ये जो हमने ऐसे आपको इंडिकेट किया है, दीज रीजन्स दैट्स नेम्ड एज डोमेन. जो हमने बोला, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग उनके पोर्टफोलियो रहते हैं, जिसकी वजह से ये अलग हैं, इनके सोच अलग अलग हैं. ठीक है, ये चीज हो गया. ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल भी करते रहते हैं, एक दूसरे पर अटैक करके. डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है, तो ये अटैक करते रहते हैं. लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया, once that external magnetic field that is there, you can see it here. I'll show you. External magnetic field that is present, what happens? ये हमने देखा कि अलग अलग हैं रीजन, और ये जो इसके पहले जो हमने आपको दिखाया था, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने क्या होगा? ये आपका सारे के सारे डोमेन्स जो हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंगली अलाइंड हो जाएंगे. एक सिंपल से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, एकदम अच्छे से आप यदि सोचोगे एंड रिलेट कर सकते हो. जैसे देखो, आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डिसीजन पे, गवर्नमेंट के डिसीजन पर अटैक करते हैं. करनी भी चाहिए. डेमोक्रेसी में कोई चीज अच्छा है बुरा है, उस पर अटैक होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल चलता है. सबके विचार अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होते हैं. लेकिन बाहर से कोरोना वायरस एक मैग्नेटिक फोर्सेस आया, उसको फेस करने के लिए सभी लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो, सब लोग एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिए. लॉकडाउन, यस, सो दे गेट अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से सक्सेस मिल भी रहा है हमारी कंट्री में. सबकी सोच, कोई एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं. एक ऐसी चीज है लॉकडाउन का, थोड़ी बहुत आप देखोगे यहाँ पर ऑपोजिशन आ रहे हैं, बट मैक्सिमम दे आर अलाइंड एंड दे आर सपोर्टिंग. तो सपोर्ट करने से क्या होता है, एक स्ट्रेंथ मिल गई है. And now successfully, like we are handling, like you will say country is handling successfully. So I find you can relate here why that ferromagnetic substance becomes magnet. क्यों magnet बन गया? क्योंकि उनके डोमेन सब अलाइन हो गए एक ही डायरेक्शन में. That's why this has been made as what? गुड मैग्नेट. जैसे वो फील्ड से बाहर भी चला जाएगा. अभी आप देखो कैसे बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद वी विल हैव लाइक डिफरेंट क्वालिटी, मास्क पहनेंगे, अपने आप को प्रोटेक्शन करेंगे, लाइक व्हाट एवर वी आर डूइंग हियर. तो वो एक नई सोच आ जाएगी. तो वो नई सोच के साथ ये खुद मैग्नेट फिर बन जाता है. तो ये बात हम लोग को समझ में आ रही है. अब आगे आप देखोगे कि इसके यहाँ पर इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप देखिए, ये जो हमने दिखाया था कि अलग अलग डायरेक्शन में फिर अलाइंड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एंड नीचे सिंबॉलिकली भी दिखाया गया है, सारे के सारे अलाइन हो गए हैं एक ही डायरेक्शन में. दैट इज इन द केस. अब इसको ध्यान से आप पहचान करके रहिएगा. इसके बाद आइए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वहां भी डोमेन्स बने. लेकिन क्या हुआ, डोमेन्स के अरेंजमेंट ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के, क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस में अलाइंड हो गए. कुछ कंट्री का भी आप सोच लो, कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया, कुछ ने एक साथ मिलकर काम नहीं किया. यदि नहीं काम किया, एक दूसरे को अपोज करते रह गए डोमेन्स, फाइनली क्या हुआ, दे आर नॉट एक्टिंग एज अ प्रॉपर मैग्नेट. एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने उनको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिलता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन. एंड उसके अलावा
वी कैन नॉट थिंक ऑफ दे, उनके पास इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद वो मैग्नेट नहीं बन पाए, क्योंकि सब एक दूसरे की बात को काटते चले गए, सब डोमेन्स एक दूसरे की बात को काटते चले गए. फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट बिकेम, रिजल्ट इन मैग्नेटिक मोमेंट बिकेम जीरो. ये बात हम लोग को समझनी है. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बहुत ही हार्मफुल. कोई भी कंट्री, कोई भी क्रिकेट टीम, कोई भी फुटबॉल टीम यदि हारता है तो उनके बीच में आपस में जो एक दूसरे को रिजल्टेंट कुछ नहीं आता, एक दूसरे को नोचते रहते हैं, उसकी वजह से होता है. ये चीज आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जाता है. ये नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे फेरी मैग्नेटिज्म में. फेरी मैग्नेटिज्म हमारा फिफ्थ मैग्नेटिक कैरेक्टर वाले में है. इसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. पिछले वाले का एग्जाम्पल देखिएगा, मैंगनीज ऑक्साइड था. ये स्लाइड्स पे आपको दिख जाएगा, उसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा. फेरी मैग्नेटिज्म पर आ रहे हैं. फेरी मैग्नेटिज्म के केस में क्या हो रहा है, यहाँ भी डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है. कैंसिल पूरे एक दूसरे को नहीं करते हैं, कुछ तो, जैसे आप नीचे साइन में देख सकते हो, दो का अपोजिट अपोज करने के लिए एक आया तो एक ही कैंसिल होगा. फिर दूसरे का, दो का अपोज करने के लिए एक आया, तो फाइनली नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ दिखता है. ये सब फेराइट सब्सटेंस है. एंड फेराइट सब्सटेंस जो है बेसिकली जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि दे रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये बात हम लोग को समझ में आती है, ये आप देख भी सकते हो. एंड इस केस में these substances also lose ferrimagnetism on heating and becomes paramagnetic. फेरी, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फेरीमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक कब बन सकते हैं, तो बनते हैं जिस समय उसको हीट करने पर. दिस क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट हम लोग आ जाएं ये देखते हुए. मैग्नेटिज्म हमारे खत्म हो गए. मैग्नेटिज्म के बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन है कि एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है 12, 16 एंड 13, 15 कंपाउंड्स हम लोग किसको बोलते हैं. 12, 16 एंड 13, 15 कंपाउंड्स एक ऐसा है कि क्रिस्टल बनाए गए जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ 12th ग्रुप कंबाइंड विद एलॉय जैसा ही होता है, लेकिन इनके बीच में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड डेवलप हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो कोवेलेंट होगा या आयोनिक होगा. Basically, to improve that quality, you can say this is not exactly alloy. This is your like they are compensating. They are acting as a bond. They are showing proper bond over there. And just to improve the quality of electrical properties, or you will say magnetic properties, this has been done. So it's there. You'll find in these compounds what happens. एक और है आपका, लास्ट में एंड करेंगे हम लोग इस चीज से कि कुछ ऑक्साइड सब्सटेंस मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एंड उस ऑक्साइड कंपाउंड के मेटालिक कैरेक्टर दिखाने की वजह से नेचुरली दे विल बी शोइंग कंडक्टिविटी. तो यही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर. ये जो रेड से हमने दिखाया हुआ है, टिटानियम ऑक्साइड, क्रोमिक क्लोराइड, क्रोमिक ऑक्साइड, रेडियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं. दे शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. एंड वेनेडियम ऑक्साइड्स एंड ऑल, they show metallic character, but they show insulating properties. And एक बात याद रखनी है कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, हम लोगों ने बोला सेमी कंडक्टर को तो चलो हम लोगों ने बना लिया कंडक्शन के लिए. इंसुलेटर का भी यूज बहुत जगह पे होता है. मतलब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो खराब चीज में उसके इस्तेमाल होते हैं. जैसे हम लोगों ने पहले मोबाइल यूज करने वाले को बेकार बोलते थे, अब मोबाइल यूज करने वाले को स्मार्ट बोलते हैं. तो ये यही चीज, इंसुलेटर के भी यूज होते हैं बहुत जगह पे, जहां पर आपको कंडक्शन नहीं चाहिए तो उसको बकायदा इंसुलेट, जहां नेचुरल वे में कंडक्शन हो रहा है तो इंसुलेटर यूज किया जा सकता है. तो दीज ऑक्साइड सब्सटेंसेस आर देयर. सो दिस वे वी आर कंप्लीटिंग आवर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझिएगा. थैंक यू.